देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और आज हमारे अध्ययन का विषय होगा फिलिप्पी की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद से। पर इसके पहले कि हम आज के अध्ययन को करें, आप प्रार्थना करेंगे। Dear friends, today we welcome you in this Bible study, and today we'll study the book of Philippians chapter 3, and I hope that we are always blessed by the study. Let's pray as we study this today's Bible study start. Let's pray. We thank you, Lord, for giving us this precious time so that we can come to you and study your holy word, Lord, which speaks to us every day, because this is your word, Lord. This is not worldly words. This is heavenly words, and it has been given to us by revelation of your Holy Spirit. And as we study this word, we pray, God, that speak to us so that our heart is enlightened and we may walk with you, Lord, in a very precise way, having your fear in our lives, in our mind. Thank you, Lord, that you guide us every day. प्रभु धन्यवाद देते कि हर रोज आप हमारी मदद करते हैं, हमारा अगुवाई करते हैं। प्रभु, हम आपको वचन के गहरे भेदों को समझ सके तक आप में बढ़ सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, last study, yesterday we saw about some of the very important things in our Christian life journey from Philippians chapter 2 verse 17 onwards. St. Paul tells his readers, his listeners from the church at Philippi, for even if I am not to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. यहाँ पौलुस कहते हैं कि अगर मैं अपने आप को तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना मुझे पड़े, तो मैं आनंदित हूँ और सब के साथ आनंद करता हूँ। पौलुस ने अपने आनंद की बात कही। वो कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, तुम्हारी सेवा को और प्रोत्साहित करने के लिए अपने आप को मैं तैयार रखता हूँ। और वो यहाँ तक कहता है कि अगर इस काम को करने के लिए अगर मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े, तो मैं मुकरूंगा नहीं, मैं अपने आप को अलग नहीं करूँगा। और वो कहते हैं कि तो भी मैं आनंदित हूँ और खुश हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। See, this is what we need to have in a Christian life. When our life become a type of example for others, our sacrifice, our services to the Lord, and then walking with the Lord, and so it brings glory, honor to the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Then we saw in the second point, he says, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. Now Timothy, we saw yesterday, and we know that he was the spiritual son of St. Paul. I told you that he was from Lystra, where St. Paul was stoned. The only time that he was stoned, he was in Lystra during his first missionary journey, and we read about it in the book of the Acts. And then he became his companion. He walked with him, even though he was very junior to St. Paul, but after St. Paul was beheaded, he continued the ministry, and he served the Lord as a shepherd, as a chief shepherd also. So now St. Paul want to send him to Philippi so that he may help these people. वो कहते हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले. Now he was kind of a medium. He stood in between Paul and the church, that is church at Philippi. And he also, when he went there, he brought some of the news from this church at Philippi, and that was the cause of blessing to St. Paul. And this is what he writes here. And then we saw many other things in this portion. Now today we'll start our study from the third chapter verse 1 onwards. आज हम इस फिलिपियों के पत्री के 3 अध्याय के पहले पद से अपना अध्ययन शुरू करेंगे. पहली बात यहाँ पर वो कहते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में सदा आनंदित रहो. वही बातें तुमको बार बार लिखने के लिए
मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। It's a very fine words of St. Paul for the church at Philippi. He said, finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is not trouble for me and is safe for you. He says that I want to really tell you that I rejoice and you also rejoice. The reason is that we are in the Lord. Jesus Christ is our Savior and because we follow Him we rejoice. यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करता है, इसलिए हम उसके पीछे चलते हैं, आनंदित होकर चलते हैं. And this is what need to be done even today in the church. Friends, what is the cause of our grief and our sorrow? Sometimes it is because we have detached ourselves from the Lord, from the source of blessing, all happiness and joy. We need to regain that status, that we need to be connected with the Lord every day in the time of our sorrow, pain and hopelessness, because He is there to take care of us all the time. वो हमारे साथ हमेशा रहता है कि जीवन के हर क्षण में हमारी मदद, हमारी सहायता करे और हम उसमें आनंदित रहें. पौलुस यहाँ पर इस बात को लिखते हुए कहते हैं कि वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं. क्या बात? कि प्रभु में सदा आनंदित रहो. What he want to write to the people at Philippi, he said, rejoice always in the Lord. Rejoice always. And we'll read about this in the 4th chapter also. But I like to quote here a little bit about that joyfulness of St. Paul. He says, I want to read here chapter 4 verse 4 onward. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything. अब वो कहते हैं यहाँ पर प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो. प्रभु निकट है. अब इसका मतलब क्या है कि तुम इस संसार में जनरस बनो, दूसरों की मदद करने के लिए तुम हमेशा तत्पर रहो. अब संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हैं यहाँ पर. वो कहते हैं कि इस संसार में जो हमारा जीवन है, जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें, और इसी कार्य को अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन से ईश्वर की महिमा होती है. तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, और आनंद का जो कारण है वो है ईश्वर के राज्य की खोज करना. और यहाँ जो संदर्भ है वह है दूसरों की मदद और सहायता करना. मित्रों, इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है. अब दूसरी बात यहाँ देखते हैं. वो कहते हैं यहाँ पर, कुत्तों से चौकस रहो. लुक आउट फॉर द डॉग्स, लुक आउट फॉर द इविल डूअर्स, लुक आउट फॉर दोज हु मुटिलेट द फ्लैश. वो कहते हैं कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन कूट काट करने वालों से चौकस रहो. नाउ we need to know here what St. Paul is trying to say. He says that be aware of those who are evil doers, जो बुरे काम करते हैं, बुराई करते हैं, मिलिशियस हैं, बदले की भावना रखते हैं और दूसरों को हमेशा नीचे गिराने की बात सोचते हैं. मसीह विश्वासी होने के नाते हमें दूसरों को ऊपर उठाना है, एक दूसरे की मदद करना ताकि वो प्रभु के लिए बढ़ते चले जाएं. लेकिन अगर उसका उल्टा हम करना चाहते हैं तो इससे नुकसान होता है, इससे सचमुच में नुकसान होता है. अब परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं. बहुत सी बातों में हम इस मसीह जीवन के अंदर इस काम को अपने जीवन में करते हैं, और यहाँ पर कई बातों का वर्णन हम पाते हैं. अब ये इविल डूअर्स कौन है, गलत काम करने वाले कौन है, यहाँ का वर्णन हम पाते हैं 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 9 पद से. अब मैंने पहले भी इसके लिए आपको बताया था, लेकिन अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है. पौलुस कहते हैं इसका मतलब है, क्योंकि दिमाग ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया. अब गलत काम करने वाले कौन है? वो जो प्रभु के मार्ग में चलना छोड़ करके संसार के मार्ग में चले. ये प्रभु के साथ जो लोग चलते हैं उनका साथ देने के बजाय
सांसारिक बातों को साथ देने लगते हैं। और यहाँ पर चुनाव हमारे जीवन में, जैसे काइंड ऑफ अ चॉइस बिटवीन अस इन दिस वर्ल्ड, वेदर वी वॉक विद द लॉर्ड और वी आर वॉकिंग विद द worldly things. Then he says here that in Hindi I read, क्रिस्क्रेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि मेरे सेवा के लिए बहुत काम का है। तिखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा मैंने त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ दिया आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तक के विशेष करके चमपत्रियों को लेते आना। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तो यहाँ पर कुछ उन लोगों का वर्णन है जिन्होंने संसार को प्रिय जाना। इसमें कौन कौन है? देमास और एक और व्यक्ति का नाम है सिकंदर ठटेरे, और कई और नाम यहाँ दिए गए, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु के साथ चलना छोड़ करके सांसारिक बातों को प्रिय जाना। और यहाँ पौलुस कहते हैं उनसे चौकस रखने की आवश्यकता, उनसे चौकस रहने की आवश्यकता। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, ठीक है ना। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर घमंड नहीं रखते। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से बताया गया, पौलुस कहते हैं कि जो प्रभु के आत्मा में चलते हैं वो प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। उनके जीवन से उसकी महिमा होती है, उनके कार्य से प्रभु की महिमा होती है। मैं सोचता हूँ इस बात पर हमें निरंतर सावधानी के साथ ध्यान देना। इस संसार के इस यात्रा में कई बार हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, हम टेम्पटेड होते हैं कि हम सांसारिकता के साथ चलें। लेकिन यहाँ प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है और हमें आगे बढ़ाता है, ताकि उसकी महिमा, उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन सकें। मित्रों, हम इस बात पर गौर करना, ध्यान देना। He says, look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for those who mutilate the worship the flesh, those who are walking in their flesh. For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. अब यहाँ पर वो कहता है कि हम तो वो लोग हैं जो प्रभु की अगुवाई में चलते हैं। Now circumcision meaning here is not physical circumcision, of course it is there, but it is more than that, the circumcision of our heart. We have nullified all the things, all that belong to this world or worldliness. हमने अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करा है और प्रभु के साथ चलने वाले बन गए। उस बात पर हमें गौर करने की और ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, शायद मैं सोचता हूँ कि इन दिनों में जब हम प्रभु के सामने अपने आप को जांचते हैं और इन दिनों में उन घटनाओं का वर्णन अपने जीवन में देखते हैं जिनका संबंध कोरोना वायरस से है, तो कई बार मन में ये विचार आता होगा ना कि प्रभु, अगर आपने मुझे बुलाया, अगर हम आपके नाम से जाने जाते तो तकलीफ क्यों है, कठिनाई क्यों? नहीं तो इस तकलीफ पूरे दुनिया के लिए आई है और इसका संबंध निश्चित रूप से अंत के दिनों से बाइबल में इसका वर्णन किया गया। खास करके टिड्डियों का आने का वर्णन हम पढ़ते हैं, जो दूसरा इतिहास उसके 14 अध्याय के 13 पद में लिखा गया है। हम पढ़ते हैं उसको, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13 पद में लिखा है जो टिड्डियाँ आएंगी, है ना। लेकिन आगे 14 पद में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं उपवास करें, प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से उनके अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके जमीन को जीवों का, उनकी भूमि को जीवों का त्यों कर दूंगा। यानी उनको मैं निरंतर जमीन की चिकनाई से, आकाश के ओस से आशीषित करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है उन लोगों के लिए जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। लेकिन जो नहीं मानते, जो ध्यान नहीं देते, उनके लिए परमेश्वर की वो वाणी है जो हमें भयभीत करती है। तो इन दिनों में जबकि हम इसे वातावरण से गुजर रहे हैं, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, दुख है, तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है,
और निरंतर हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। केवल वो ये चाहता है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में उसकी उपासना करते रहें और यीशु मसीह पर घमंड करते रहें और कभी भी किसी प्रकार से शरीर पर भरोसा ना रखें। तीसरी बात है लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का कारण है, विचार है, तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। अब यहाँ पौलुस अपने जीवन के उन बातों का वर्णन करते हैं जिसको हम देखें ध्यान से। वो कहते हैं कि हम शरीर पर भरोसा ना रखें, क्योंकि शरीर पर भरोसा रखना धोखा है ना, धोखा है, क्योंकि शरीर आपको कब तक आपके साथ देगा। लेकिन अगर हमने भरोसा रखा तो हम धोखा खाएंगे आगे चलकर। तो कहता है अपने बारे में, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानी को इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला हूँ। यहाँ कम से कम हमारे सामने 7 बातों का जिक्र है जो पौलुस अपने बारे में कह सकता था, लेकिन वो कहता है कि इन सब बातों को मैं प्रभु के नाम के कारण इनको कूड़ा समझता हूँ। हम देखेंगे आगे, अगला पॉइंट हमारा यही है। घमंड करने का कारण है, घमंड कर सकते, लेकिन एक विश्वासी को घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें इन तमाम बातों से बचाना चाहता है जो दुनिया की बातें हैं, दुनियावी बातें, ताकि हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन से उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई कर सकें। तो यहाँ पर इस बात पर गौर करने का अभिशेष है इन द थर्ड पॉइंट, दो आई माई सेल्फ हैव रीजन फॉर कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश ऑल्सो, इफ एनी वन else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Now what are the reason? He says circumcision on the, I circumcised on the 8th day, number 1. Number 2, I am of people of Israel, I am Israeli. Number 3, of the tribe of Benjamin. And then he says Hebrews of Hebrew, Hebrews of Hebrew means he was a educated person, educated of the law, and knew everything. And if you talk about today's understanding or today's knowledge, it would have been double PhD, because he was a wonderful orator and great theologian, and he understood the meaning of the scripture very clearly. But he is not having pride on all these things. And then he says, as to the law, a Pharisee. As to the law, he was a Pharisee. Strictly observed the law. बहुत ही महत्वपूर्ण उसका जो जीवन के बात था। वो कहता अगर मैं अपने जीवन के उत्साह के बारे में कहूँ ना, तो मैं फरीसी था। अपने ज्ञान के बारे में अगर मैं बोलूँ कि मैं कुछ हूँ, वो कहता अगर मैं व्यवस्था की बात कर तो मैं फरीसी था। व्यवस्था के अनुसार मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता और अपने सारे कमा का दशमांश देता, और मैं प्रभु के लिए सारी बातें करता था जो व्यवस्था के अंदर मेरे लिए लिखा है, उसको मैं करता था। Then he says that as to zeal as persecutor of the church, I was zealous, but not in a right direction, but in a wrong direction, or persecuting the church of Jesus Christ. But at the time it was good work for me. And then also he says, as to righteousness under the law, blameless. He said that I lived a blameless life, a very orthodox life, a very life with all carefulness. So all these things are plus, 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 plus. And friend, many a time we also, as the children of God, as people of His congregation in the church, we have pride in our all these things. These are good things, but these things will not take us to kingdom of God. ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ईश्वर के राज्य में पहुंचा नहीं सकती। यहाँ पर आगे हम देखते हैं चौथी बात, पर वो कहते हैं परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. I think you need to understand this very carefully, very, very carefully, friend, because this is important. What are the things that I can count today as the loss for the sake of Christ?
some of are educated, qualified, and can write some degrees after our name, high degrees and very high degree, 4 degrees, 5 degrees. These are all good, wonderful. We need to praise God, but we should not depend upon this because we follow Christ. We need to depend upon Christ. Many a time these degrees and this knowledge become obstacle to us. We have proud. We have proud over all this. कभी कभी हम पर घमंड करते हैं. हम कहते हैं वो जो उनको नहीं आता, इनको नहीं आता. ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है. बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 10 से 13 पद में लिखा है कि अगर ज्ञान हो तो मिट जाएगा. ज्ञान हो तो मिट जाएगा. If the knowledge, if you talk about knowledge, it will be completely gone one day. It's not going to sustain one day because it's temporal. And therefore what will sustain? वो कहते क्या रहता है? आशा, विश्वास और प्रेम. Hope, faith and love will remain forever. And greatest of all is love. What does it mean? Love creates in us a type of fellowship with God's people, and we need to continue in that fellowship. हमारे जीवन में जो संगति को हम पाते हैं वो प्रेम के कारण होता है. उस संगति में हमें बढ़ने की आवश्यकता है. ज्ञान हमें एक दूसरे से अलग कर सकता है कि भाई ज़्यादा ज्ञानी हूँ तो अज्ञानी के साथ क्यों बैठूँ, तो मैं अपने आप कल मैंने अलग कर लिया. अब मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो ज्ञानी लोग हैं. और दुनिया में बहुत बार लोग जो ज्ञानी ढूंढते हैं ना, उनको अपने से ज़्यादा ज्ञानी कोई मिलता नहीं है, तो अकेला ही रहता है हमेशा. लेकिन अगर उसने इस बात को देखा कि ज्ञान तो मेरे लिए है ना, अगले को ज्ञान प्राप्त करने का मौका नहीं मिला, अच्छे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो क्या मैं उसके साथ बात नहीं करूं, उसको क्रिटिसाइज करूं? पौलुस कहता है ऐसा गलत है. और वो कहता है कि मैंने यीशु मसीह के कारण वे बातें जो मेरे लाभ की थी, मैंने उन्हें हानि समझ लिया मसीह के कारण. क्या मतलब है? When I have accumulated all good knowledge, but because I am a follower of Jesus Christ, I need to go out, get along with everyone, illiterate, literate, and anyone. They are my brothers and sisters. And that need to be practiced by us very carefully. आगे लिखते, वरन मैंने अपने आप को मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count all these things as it is nothing, as rubbish, in order that I may gain Christ. In order to gain Christ and live in him, I need to really differentiate my life from all these things. A life of detachment. Though I have everything, but because I am following Christ, I need not to have proud about all these things. मुझे इन पर घमंड नहीं करना. I should be having proud in Christ. मुझे उसमें घमंड करने की आवश्यकता है. जब ऐसा हो जाता है तो जीवन में वो हमें बढ़ाने और आगे बढ़ाने लगता है. वो कहते हैं मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा और करकट समझता हूँ, जिससे मैं मसीह की को प्राप्त करूँ और उसके पहचान में आगे बढ़ता चला जाऊँ, ताकि मेरे जीवन से उसकी महिमा हो सके, उसकी स्तुति बढ़ाई हो सके. मित्रों, आज हम यहीं रुक जाएंगे. और मेरी आशा कि हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा है संक्षेप में. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन की प्रभु जी हमने सीखा पढ़ा. और हम चाहते प्रभु कि हम इसमें बढ़ते चले जाएँ, ताकि हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा स्तुति आदर मिल सके. प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, इसके उत्तमता के अंदर प्रभु हम बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाई, हमारी गवाही प्रभु आपको महिमा दे सके. आप हम पर अनुग्रह करें, दया करें. वचन के बीच प्रभु आज हमारे हृदय के अंदर बोया गया और व्यर्थ न जाए प्रभु. फलवंती तो उसमें फल लाए प्रभु, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन. Dear friends, we have some announcement. This Bible study will continue, and today nowadays we are studying the letter of St. Paul to the church at Philippi, and it will continue.
Also, I request you, if you have some prayer request, please share with us in our WhatsApp, that is Apostle Methodist Church, and I think about 180 people are member of that, and you can send your message of your prayer request, praise item, and we'll pray for you. Also, nowadays every day from Monday to Saturday our church office is open. The time is from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. and I request you to please come and to meet your pastor so we can have prayer together. Or if you want to deposit your church fund that have accumulated for last 6 months, Sunday offerings, so you can deposit those, and thus you can grow in the Lord day by day. Dear friends, also let us pray for our country, which is passing through a very hard time of pandemic, and by the grace of God we are better now, and pray that this disease may continue to completely go from our society and our neighborhood, so that we may rejoice in the Lord always, and with God nothing is impossible. Let's pray for our country's leaders, so that God may continue to help them, bless them. Pray for our church leaders, our bishops, especially our Bishop Subodh Mandal, Madam Sudipta Mandal, our Delhi Regional Conference Executive Secretary Reverend Sujit Das, Reverend Varinder Kumar, our Tezar, and Mr. Anil Nathaniel, our lay leader. Pray for our WCS sisters, our youth, MYF, our Sunday school children, so that everyone may grow in the Lord day by day. And let us pray for our own families of this congregation, English, Hindi, Nepali, so that God may continue to guide us, lead us, and we may live our life for His glory. Let's pray. प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, जो वचन हमने सीखा उस पर आशीष हो, ताकि हम अपने बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। प्रभु हमारे देश पर आपका अनुग्रह प्रभु, हमारे परिवारों को संभालें, स्वस्थ रखें, आनंदित रखें प्रभु, और अपनी शांति में रखें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे हम कुसवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कुसों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत और शरारत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। सबको शुभ रात्रि। जय मसीह।